Hello everyone, welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. We are here again to present you the next lecture, and in this lecture we are going to study work and energy. Alright, so we'll be talking about all about the things whatever you needed in this examination, right? तो आपको स्कूल एग्जामिनेशन के लिए साथ ही साथ आपके जो ओलंपियाड लेवल जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए भी वर्क एंड एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. ठीक है, तो इसके क्या होंगे, आपको एक ही तरीके से एक ही इस वीडियो लेक्चर को देखने के आपको दो फायदे होंगे. और वो क्या कि भाई आप स्कूल एग्जामिनेशंस को भी क्रैक कर पाएंगे, साथ ही साथ आप क्या कर पाएंगे, ओलंपियाड लेवल के लिए भी स्टडी कर पाएंगे. तो बेसिकली आपको जो है दो काम एक ही स्टडी करने में पॉसिबल हो रहा है, राइट? तो दैट्स व्हाई यू शुड स्टडी, राइट, एंड दैट्स वाई यू शुड बी विद अस, ताकि आप क्या कर सके, दोनों ही चीज़ों को क्रैक कर सके. एंड दैट्स वाई वी आर प्रमोटिंग ऑल ऑफ दिस, वी आर मेकिंग दीज वीडियो लेक्चर फॉर यू, वी आर डूइंग दिस फ्रॉम द कोटा, राइट? एंड दैट्स वाई वी आर वेरी मच you can say dedicated in bringing you the quality lectures, all right, so that you can study hard and become the best one. All right, so you do know that what we prepare for, we do prepare for the school examination all classes 6 to 10 and all as well as the olympiads all classes 6 to 10, and then उसके बाद भी जो है हम एक्स्ट्रा ओलंपियाड्स को भी प्रिपेयर करते हैं लाइक NTSC, NSC, JS and PRMO, and that is what the aim. राइट, सो द थिंग इज कि अगर आपको DPP एंड स्टडी मटेरियल चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. ऑल यू नीड टू डू इज टू just go on the telegram app, write the code whatever class you are in, right? तो देखो ये है TTP 06 for 6th class, so you should write this code. Alright, join us and get the DPPs and study material over there. जो भी वीडियो क्लासेस या फिर वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो दैट वुड बी हेल्पफुल. दैट मीन्स यू शुड join it, right? And you can see this is the team which is definitely doing the hard work and bringing you all the best quality lectures so that you can prepare for both the things, right? And that's what our aim is, that we should not leave any child behind, and that's why we do prepare for all the things. Now look, we have prepared or we have tried to guide you all through our packages. All right, so we have prepared some packages for you all so that you are guided towards the examinations, whatever examination you are going to fight for. So basically you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. over there you can get the two type of packages. The number one is the full package, number two is the test series, right? The full package contains all the things like you will be properly guided, alright, how you should study and what are the topics you should prepare for, what are the topics that are important, right? All the, you can say, structured study material you will be getting, all type of questions you will be getting, what are the level of questions in the Olympiad or what are the level of the question in the school examinations, all such things you will be getting. Definitely you will be getting the video lectures, the, you can say, recorded one and the live classes both. The third thing you will be getting is what? Homework submission feature, where you will be doing the homework and submitting to us and we'll be checking that. So that would be like encouraging the homework thing in you, because कई बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और कोई जैसे अगर चेक नहीं करेगा तो बच्चे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई चेक तो कर नहीं रहा, राइट? बट द थिंग इज दैट आपको क्या करना है, आपको होमवर्क सबमिट करना है. आपको हम कि जो है encourage करेंगे दैट यू शुड डू द होमवर्क, बिकॉज अगर आप होमवर्क करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपके चांसेस क्रैक करने के ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग द बाई-वीकली क्विजेस, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड ट्वाइस अ वीक एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रीक्वेंट टेस्टिंग में आपको क्या होता है, स्ट्रांगनेस आते हैं, यू फील लाइक अ कॉन्फिडेंस कि भाई आप क्रैक कर सकते हैं, दैट यू आर गोइंग थ्रू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगैन. So you will be definitely prepared for the final examination. Now the next thing you will be getting is the periodic test papers, and these periodic test papers are based on the pattern coming in the final examination, Olympiad level education. So you will definitely be like rehearsing the final thing. So that is very important, ताकि आप जब रिहर्स करेंगे डेफिनेट सी बात है तो आपको क्या लगेगा कि आप फाइनल एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्मेंस करते हो, राइट? आपको पहले से पता होगा कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इतने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं जिनको आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, एंड ऑल सच थिंग विल बी क्लियर फ्रॉम द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. ऑलराइट, तो दिस वुड बी टेकन एज अ गाइडेड वन, कि जिस भी बच्चे को ऐसे फील होता है कि भाई उसको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा है,
या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो दे कैन गो फॉर दिस फुल पैकेज. एंड द स्टूडेंट्स हु आर रियली मच लाइक रीडिंग एवरीथिंग, उनको पता होता है कि दीज आर ऑल द टॉपिक्स एंड दे डू स्टडी ऑल द टॉपिक, लेकिन उन्हें पता नहीं होता दैट वेयर दे स्टैंड, उनको कितना नॉलेज है कितना नॉलेज नहीं है. So they can definitely go for the test series. So basically आपको क्या करना है, choose on your own that you want to go for the full package or you want to go for the test series package. That's up to you, right? And the thing is कि if you want a discount, right? If you want discount on any of these packages you choose from the talkingtextbooks.in, you should write a code, and that is what CYLIVE. So this is CY Live. If you write this code, you will be getting 30% discount. So basically it is very good for everyone. They should definitely go for because they are getting a discount. So and then if you have any query regarding anything like what are the packages, how you will be benefited from them, or anything, any query regarding anything on the talkingtextbooks.in, you can definitely call us on this number. Alright, 919549041111. These are the numbers you should call us on, and all your queries will be resolved over there. So basically this was the important thing I wanted to tell. Now let's start the chapter. So this is the promise time, and you should promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on the daily basis, because revision is the key. 15 minutes a day, do it every day, and that will make you a wondrous smart student. Alright, so that is the motivation I want to give it to you. Now let's talk about what is work. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है वर्क. ऑलराइट, वैसे तो हम बहुत बोलते रहते हैं क्या काम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से हमारा काम ही रहता है. ठीक है, मम्मी कहती है मैं काम कर रही हूँ, राइट, पापा कहते हैं वो काम पे जा रहे हैं, बहन कहती है मैं भी काम कर रही हूँ. सो बेसिकली वो काम तो कर रहे होते हैं, दैट मीन्स दे आर वर्किंग, राइट. बट व्हाट इज वर्क, एक्चुअली में क्या होता है वर्क, ये चीज़ आपको समझनी इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल लाइफ में हमारे लिए पढ़ना भी काम होता है. ठीक है, अगर हम बुक लेके कर रहे हैं तो ये भी हम कुछ कर रहे हैं, लाइक ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, राइट. कुकिंग फूड भी हमारे लिए एक तरीके से काम होता है, दैट वी आर डूइंग वर्क, राइट. यू कैन सी, अगर हम एक वॉल को पुश करें तो वो भी हमारे लिए काम ही है. ऑलराइट, तो बेसिकली जब कभी भी हम किसी भी यू कैन से फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, या फिर वी कैन से कोई भी एक्टिविटी, किसी भी तरीके की एक्टिविटी, आइदर मेंटली आइदर फिजिकली, सो बेसिकली वी आर डूइंग वर्क. ठीक है, हमारे नॉर्मल लाइफ में तो हम यही बोलते हैं दैट वी आर डूइंग वर्क. अगर आप बैठे बैठे टीवी भी देख रहे हो तो बोल रहे हो मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी मेरे को टाइम नहीं है. सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो हम एक तरीके से काम को लेकर करते हैं. वी हमेशा ऐसा बोलते हैं कि वी आर डूइंग समथिंग एंड दैट इज वर्क. किसी के लिए भी, किसी के लिए डिफरेंट काम होता है. जस्ट लाइक मम्मी के लिए कुकिंग उनका काम है, पापा के लिए ऑफिस जाना और वहाँ पे जाके काम करना वो उनका काम है, राइट, देयर उनका वर्क है. आपका काम क्या होता है, होमवर्क करना. सो बेसिकली इफ यू आर डूइंग होमवर्क दैट मीन्स यू आर वर्किंग, राइट. तो आप लोग सिर्फ नॉर्मल लाइफ में देख के ये समझ पाते हो दैट काम क्या होता है, कुछ भी करना, लाइक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, लाइक लेट्स से आप अपने जो है बुक्स को बहुत अच्छे से साफ करके जमा के बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क, राइट. अगर आप जैसे अपना बैग बना रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क, राइट. तो ये जो चीज़ें होती है, ये जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं, इनको आप बोलते हैं नॉर्मल जिंदगी में काम, राइट. तो ये तो हमारी नॉर्मल सी बात है. डेली लाइफ में हम बोलते हैं द टर्म वर्क means any kind of mental and physical activity will be considered as work. alright, तो आप तो बोलेंगे हम तो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या फिजिक्स में इसको वर्क बोला जाएगा? नहीं, इसको नहीं बोला जाएगा. क्योंकि देखो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, फिजिक्स के अंदर अगर हम वर्क की डेफिनेशन बोले तो मतलब फिजिक्स का वर्क और रियल लाइफ का वर्क वुड बी टोटली डिफरेंट. देखेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. काम तभी होगा जब कोई चीज अपनी जगह से हिल जाएगी, उसका पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स. मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, उस बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाए, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द वर्क ओनली, उसके अलावा नहीं, राइट. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. देखेंगे ये जो अभी जो अपीयर होने वाला है, ऑलराइट. सो बेसिकली ये जो बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है, इस बॉक्स को धक्का लेके जा रहा है. तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो इस बॉक्स को लेके जा रहा है, एंड क्योंकि वो बॉक्स को फोर्स लगा के अपने हाथों से पुश करके वो उसको लेके जा रहा है, उसकी बॉडी मतलब वो जो बॉक्स रखा हुआ था उसका पोजीशन डिस्प्लेस हो रहा है. दैट मीन्स वो जो बच्चा था वो काम कर रहा है, ऑलराइट. तो अगर ऐसा होता है कि भाई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, पोजीशन चेंज कर रही है,
बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, कुछ फोर्स लगा के पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ तभी हम उसको कंसीडर करेंगे एज अ वर्क इन फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग अब से जो वर्क है वो हमारा नॉर्मल ज़िंदगी का वर्क और फिजिक्स वाले वर्क को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी का वर्क होगा कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मेंटल फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं दैट वुड बी कंसीडर्ड एज वर्क। लेकिन अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर फोर्स होना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशन चेंजिंग होना चाहिए उस बॉडी का जिसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, देन ओनली वी आर कंसिडरिंग दैट एज अ वर्क। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल होती है। ठीक है, बिकॉज वी डू नो कि हर एक क्वांटिटी का SI यूनिट भी होता है, CGS यूनिट भी होता है, तो वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई जो वर्क है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि वर्क का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। नंबर वन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड करे कि भाई कितना फोर्स है, कितना क्वांटिटी का फोर्स है, कौन से डायरेक्शन में है, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग जो है द डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उस डायरेक्शन के अंदर बॉडी कितना मूव हुई है, ठीक है, कितना उसने पोजीशन चेंज किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो फैक्टर भी डिपेंड करता है किस पर, मतलब वो वर्क के एक तरीके से चेंज कर सकता है, उसका वैल्यू चेंज कर सकता है। तो बेसिकली हमको चाहिए क्या चाहिए, हमको चाहिए एक फोर्स, लेट्स से दिस इज द बॉक्स और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F टूवर्ड्स दी यू कैन से लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब आप देखेंगे अगर ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होकर D डिस्टेंस तक चली जाएगी अगर, ठीक है, तो वर्क क्या बन जाएगा, वर्क वुड बी F इंटू D, दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी यहाँ से लेके, लेट्स से अब वो बॉडी यहाँ आ गई है, ठीक है, तो बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ये जो फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड बोथ, अगर हम दोनों को कर दें देन वी वुड बी गेटिंग वर्क एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ है, और यही दो फैक्टर्स है जिनके ऊपर वर्क डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो आपको क्या करना है, फटाफट से नोट कर लेना है। ठीक है, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है। वर्क समझ में आया, वर्क का मतलब क्या हुआ भाई, कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, किसी फोर्स की वजह से हो रही है, तो हमने उसको बोल दिया दैट वर्क इज बीइंग डन। ऑलराइट, लेकिन अब हम बात करते हैं एनर्जी, और वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं रिलेटेड होते हैं, बिकॉज काम करने के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। सही बात है। अब जैसे आप इन बच्चों को देखो, एनर्जी लेवल अगर बहुत ही कम रहता है तो हम कोई काम नहीं कर पाते। ठीक है, हम में कुछ एनर्जी नहीं रहती, हम बिल्कुल डल से बैठे रहते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ढेर सारा खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, और फिर हम में एनर्जी आ जाती है, फिर हम फटाफट सारा होमवर्क खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली एनर्जी जो हमें चाहिए वो किसके लिए चाहिए, काम करने के लिए। सो बेसिकली अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर सकते, राइट। एनर्जी लो होगी तो हम काम नहीं कर सकते, एनर्जी हाई होगी, एक्टिव होंगे तो हम काम कर सकते हैं। सो एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो एनर्जी का मतलब जैसे अब हम थके होते हैं, ठीक है, हम स्कूल से घर आ रहे हैं, चलते चलते आराम से बैठ गए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गई है। सो बेसिकली वो जो चीज़ हमें चाहिए ताकि हम और ज़्यादा काम कर सके, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एनर्जी। ठीक है, तो मतलब कुछ भी अभी जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर यू कैन सी एक नेसेसिटी हो, अगर वो नेसेसिटी फुलफिल हुई तो मतलब हम लोग बोलेंगे हमारे पास एनर्जी है, और हम लोग फटाफट से जो है अपना वर्क सारा कंप्लीट कर देंगे। तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी। किसके लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट। बेसिकली हम लोग यही बोलते हैं। देखो अब व्हेन अ मैन डज वर्क ही फील्स टायर्ड, जब कभी भी कोई भी काम करता है तो उसके बाद उसे थकावट हो जाती है। जैसे आप खेल के आते हैं, ठीक है, खेल के आते ही जो है आराम से सोफे पे बैठ जाते हैं, बिकॉज हम थक चुके होते हैं, हमने इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटी की होती है, ठीक है, हम थक के बैठ जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने काम किया एंड दैट्स व्हाई वी फील टायर्ड।
ठीक है। रिजल्ट देखो, तुम काम किया, राइट, काम क्या था आपका, प्लेइंग था, ठीक है, एंड यू प्लेड। whenever you does that, आपने अपनी बॉडी को डिस्प्लेस किया, आपने अपने मसल्स को मूव किया, एंड दैट्स व्हाई यू डिड सम वर्क। एंड आपने क्या किया, जब आप वापस आए घर पे तब तक आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आपने सारी जो है प्लेइंग में लगा दी, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। सो दे यू आर फील टायर्ड, राइट, तो आप आराम से जाके बैठ जाते हो, ठीक है। ही फील्स दैट ही हैज लॉस्ट समथिंग विच ही मस्ट रीगेन टू वर्क मोर। उसको ऐसा लगता है कि उसने कुछ ना कुछ लॉस कर दिया है। जब आप घर जाते हो, जब आप टायर्ड होते हो, तो यू फील लाइक कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया है, जिसको अगर हम ज़्यादा वापस से करें तो हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली वो जो कुछ खोया है, जिसको तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें और चीज़ चाहिए ताकि तुम क्या कर सको, और ज़्यादा काम कर सको, दैट इज़ द एनर्जी, राइट। तो बेसिकली जब हम टायर्ड होते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है टोटली लो होती है, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। बट फिर जैसे ही हमें और एनर्जी मिलती है तो उसके बाद हम वापस से एक्टिव फील करते हैं और सारा काम अपना फिनिश कर देते हैं, ठीक है। देखेंगे, अ वीक मैन गेट्स टायर्ड आफ्टर डूइंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। जो कमज़ोर आदमी होते हैं, लेट्स से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि फिजिकली कमज़ोर हों, जैसे वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते या फिर वो हमेशा बैठ के पढ़ते रहते हैं तो उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेट्स से आप जब सिक हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, तभी भी तो होता है ऐसा, ज़्यादा काम नहीं कर पाते, हम थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं। तो बेसिकली उस वक्त क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी में टोटली एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तब ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि जो वीक मैन होता है वो थोड़े से काम में ही जो है उसको ज़्यादा थकावट हो जाती है, बल्कि एक स्ट्रांग मैन, जैसे मानो कि वो रोज़ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, हमेशा खेलते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा अमाउंट काम में काम करने के बाद टायर्डनेस फील होती है। तो बेसिकली होता तो सभी के साथ ऐसा ही है, टायर्ड है तो सबको फील होती है। टायर्डनेस जब फील होती है तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी तुम्हारी हो गई है लो, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन कंटिन्यू टू वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वो बहुत देर तक काम कर सकते हैं, बिकॉज उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। वीक पर्सन का एनर्जी लेवल पहले ही कम होता है, वो थोड़ा सा काम करेगा तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, एंड दैट्स वाई दे कैन फील लाइक ऑलवेज टायर्डनेस। समथिंग दैट अ वर्किंग मैन लूजेज इज कॉल्ड एनर्जी। सो बेसिकली जब कभी भी हम कुछ काम करते हैं तो वी आर यूजिंग एनर्जी, ठीक है, हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते हमारी एनर्जी लो हो जाती है एंड वी फील टायर्ड। फिर जैसे ही हमने लेट्स से फूड खाया, लेट्स से हमने मिल्क पिया, तो हमें एनर्जी वापस से मिल जाती है, राइट। जैसे ही हमको वापस से एनर्जी मिली, हम और ज़्यादा जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं एंड बेसिकली हम अपना सारा होमवर्क फिनिश खत्म कर देते हैं, राइट। तो इसका मतलब हमें काम करने के लिए या फिर हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, मेंटल एक्टिविटी करने के लिए, वी नीड समथिंग एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू वर्क, ऑलराइट। सो बेसिकली बोथ एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड, ऑलराइट। देखेंगे इसका प्रॉपर डेफिनेशन जो हम फिजिक्स की टर्म्स में कंसीडर करते हैं वो क्या है। देखेंगे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और टोटल वर्क डन बाय अ मैन और बाय एन एजेंट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द मैन और द एजेंट। कितना कैपेसिटी है कि वो कितना काम कर सके। किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स दे आर हैविंग मोर एनर्जी। किसी की कैपेसिटी कम होती है, दैट मीन्स दे आर हैविंग लेस एनर्जी। जैसे जब आप खेल कर आ चुके, आप आराम से बैठे हुए हो, उस वक्त आप टायर्ड फील कर रहे हो, सो यू हैव वेरी मच लेस कैपेसिटी ऑफ डूइंग योर होमवर्क नेक्स्ट, राइट। लेट्स से आप जो है बाहर से खेल कर आए, आप आराम से बैठ गए, नाउ योर एनर्जी इज ऑलरेडी लो, तो अब आपके पास आगे का काम करने के लिए, लेट्स से होमवर्क करने के लिए, लेट्स से कोई और काम करने के लिए कि आपको अपनी जो है बुक्स अरेंज करनी है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए, यू डू नॉट हैव एनी एनर्जी। जब आपके पास एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स आपके पास और कैपेसिटी नहीं है काम करने की, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। जितना ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी होगा मतलब ज़्यादा एनर्जी है। अगर आपके पास वो कैपेसिटी कम हुई कि अब नहीं हो पाएगा काम बिल्कुल भी, अब बिल्कुल जो है थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो उस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है, बिकॉज योर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज टोटली लेस, राइट। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब देखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। कुछ पता चला आपको? जो मेन चीज़ मैं आपको एम्फेसिस करना चाहती हूँ वो आपको पता चला कि देखो, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और हमने वर्क की एसआई यूनिट क्या देखी थी, वो भी जूल देखी थी। इससे भी वर्क एंड एनर्जी आपस में जो है कनेक्टेड रहते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज सेम
एज द SI यूनिट ऑफ जूल, बिकॉज जितनी एनर्जी होगी उतना काम कर पाएंगे, राइट। तो कैपेसिटी आप में कितनी है वर्क करने की, दैट मीन्स दैट्स एनर्जी। कितना काम कोई आदमी करता है तो मतलब हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है उसका। बेसिकली हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, एंड दैट्स व्हाई दे हैव द सेम यूनिट्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से एनर्जी ज़्यादा तो वर्क करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा, एनर्जी कम तो वर्क करने की कैपेसिटी भी कम, राइट। एंड यू कैन सी द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ज, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द अर्ग, ERG। सो यू कैन बेसिकली से दैट CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग, जूल क्या होती है, SI यूनिट होती है। नाउ अब दोनों में रिलेशन देखो, दोनों में रिलेशन ये है दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये आपको रिमेंबर करना है, ऑलराइट, ये आपको रिमेंबर करना है, एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट बिकॉज ये कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपको कन्वर्जन जरूरी होता है तो उसके अंदर आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। ऑलराइट, तो बेसिकली ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड यू शुड राइट दैट। सो बेसिकली आपको फटाफट से अभी राइट करना है ताकि हम आगे चल सके। राइट, तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, तुम्हें एनर्जी चाहिए ताकि तुम काम कर सको, और काम करना तो नेसेसरी है, लाइक डूइंग होमवर्क इज नेसेसरी, पढ़ना नेसेसरी है, खेलना नेसेसरी है। सो बेसिकली हम लोग को जितना भी एक्टिविटी करना है हमको एनर्जी चाहिए। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है ये हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपरली पूरे नेचर की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ की बात करें, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, ऑलराइट। तो ऐसी चीज़ जिससे हमको एनर्जी मिलती है दैट इज़ नोन एज द सोर्स, ठीक है। तो मतलब सोर्स का मतलब क्या हुआ, जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है। आइदर इट कैन बी सन, सन से भी हमको एनर्जी मिलती है, यस, हम लोग को हीट एनर्जी मिलती है, हमको लाइट एनर्जी मिलती है सन से। सो सन भी क्या हुआ, एक सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है, तो यस, फूड इज ऑल्सो टेकन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो बेसिकली जिस भी चीज से हमको एनर्जी मिल रही है दैट इज नोन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑलराइट। तो उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्या हुआ, सन, ठीक है। तो सन को भी हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मानेंगे बिकॉज हमें लाइट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, राइट। इसको देखते ही जो है हमको अच्छा सा फील होने लगता है। नेक्स्ट इज द यू कैन से एयर। एयर भी हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है, और कैसे वो मैं आपको बताऊंगी जब हम विंड मिल के बारे में स्टडी करेंगे, जब हम एयर एनर्जी और विंड एनर्जी की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कोल। अब आप सोचेंगे कोल के अंदर कैसे एनर्जी हो सकती है, यस, कोल में भी एनर्जी होती है, और इसकी एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, और उसकी वजह से जो है हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आई विल बी टॉकिंग दैट लेटर, बट बेसिकली आपको क्या समझना है, आपको ये चीज़ समझना है कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमें यू कैन से डायरेक्टली हमारी बॉडी को नहीं बट डिफरेंट तरीकों से हमको एनर्जी मिलती है, उसको हम बोलेंगे क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारे लिए फूड हुआ जिसको डायरेक्टली हम खाते हैं, सो वी गेट एनर्जी। मिल्क, यस, दैट कैन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली जितने भी एडिबल्स हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है, सो दैट कैन बी टेकन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ सन हुआ, विंड हुआ, कोल हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, एंड दैट विल बी टॉकिंग दैट अबाउट वन बाय वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स होते हैं 2, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज द रिन्यूएबल, नंबर 2 इज नॉन रिन्यूएबल। सो बेसिकली जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं हमारे लिए, ठीक है, उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले हमने उन कैटेगरी को रखा जिन कैटेगरी के अंदर जो सोर्स है वो बार बार हमको एनर्जी देता रहे, ठीक है, कंटिन्यूसली और कभी खत्म नहीं हो, ठीक है। जैसे कि सन हमें रोजाना मॉर्निंग से इवनिंग तक एनर्जी देता है, लाइक वो हमको हीट एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी देता है, ठीक है, देता है। फिर अगले दिन वापस सुबह जब वो उगता है तो वापस से वो एनर्जी देने लगता है। तो बेसिकली सन की जो एनर्जी मिल रही है वो हमें रोजाना कंटिन्यूसली मिल रही है,
और ऐसा नहीं है कि सन की एनर्जी फिनिश हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो बार बार हमें मिलती रहती है, बार बार हमें मिलती रहती है और इतनी जल्दी फिनिश नहीं होने वाली होती है। दोज आर कॉल्ड द रिन्यूएबल्स, ठीक है, बार बार नहीं होना। यू कैन सी द डेफिनेशन रिन्यूएबल, तो इसके अंदर आपको न्यू दिख रहा है, न्यू मीन्स नया, बार बार नया नया हमको मिलता रहता है। सो वी कैन से द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बिकॉज ये ऐसे सोर्स हैं जो कि अभी अभी पता चले, अभी अभी तो नहीं, मतलब वी कैन से कि हम पहले के ज़माने में नहीं पता चलते थे, थोड़े लेटेस्ट हैं ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, वैसे तो अब हमारे लिए नॉर्मल हो गया है। ऑलराइट, तो देखेंगे द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर इन कांस्टेंट सप्लाई टू अस बाय नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टेबल आर नोन एज द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपको ये देखना है ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमको कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहते हैं और ये नेचर से रिलेटेड, राइट, बिकॉज दे आर गिवन बाय द नेचर। तो सन हमने तो नहीं बनाया, सन नेचर ने हमको दिया, राइट। तो बेसिकली वहां से जो एनर्जी मिल रही है वो नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है एंड इट इज इनएग्जॉस्टेबल, खत्म नहीं होगा जल्दी से। That's why they are considered the renewable। देखो कौन कौन आता है, सन आता है, ओशियंस आता है, बिकॉज ओशन में इतना पानी है और वहां से हम बहुत सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यस 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 इट्स रिन्यूएबल, ठीक है। टाइड्स जो चलती हैं, टाइड्स, लो टाइड्स, हाई टाइड्स जो चलती हैं, राइट, उस पे भी जो है हमको क्या चाहिए होता है, एनर्जी मिल सकती है उसके ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। विंड, हवा चलती ही रहेगी, डेफिनेटली हवा कभी खत्म नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज इनएग्जॉस्टेबल एंड दैट्स व्हाई इट इज द रिन्यूएबल, ठीक है। रनिंग वाटर, ठीक है, ये तो तुम्हारे नल में फिनिश हो सकता है, ठीक है, टैप में हो सकता है, बट रिवर्स विल ऑलवेज बी देयर, ओशन विल ऑलवेज बी देयर। तो बेसिकली रनिंग वाटर का एनर्जी हम लोग इनएग्जॉस्टेबल नहीं कह सकते। ऑलराइट, वुड, वुड को भी हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इट इज रिन्यूएबल बिकॉज जो है ट्री ग्रो करता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये प्रोसेस चलता रहेगा, लाइक वी गेट द वुड, ठीक है, उससे हमने वी यूज दैट एनर्जी, राइट। बेसिकली हम अगर और ट्रीज लगा देते हैं तो ये हमको वापस से वुड प्रोवाइड करेगा, तो इट इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, ऑल्सो इट इज इनएग्जॉस्टेबल बिकॉज हम पेड़ को पूरी तरह नहीं फिनिश कर सकते एंड द बेसिकल थिंग भी हमें करना भी नहीं है, राइट। हमको क्या करना है, ग्रो करना है ट्रीज को, बिकॉज वी शुड मेक आवर अर्थ मोर ग्रीनर एंड दैट्स व्हाई वी शुड डू दैट। सो बेसिकली सन से मिलने वाली सोलर एनर्जी, वाटर से मिलने के लिए और विंड से जो मिलती है, दीज आर कंसिडर्ड एज द रिन्यूएबल, बार बार नई होते रहती है, फिनिश नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द रिन्यूएबल। द नेक्स्ट टाइप इज द नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो नई नहीं होती, एक बार अगर फिनिश हो गई, उसके सोर्स अगर फिनिश हो गए तो हो गए, खत्म हो गए, कुछ नहीं किया जा सकता, राइट। तो हमको फिर नए सोर्सेज चाहिए होते हैं जो कि ऐसा नहीं हो, खत्म नहीं हो। तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें हमने बोल दिया है नॉन रिन्यू, जो बार बार नया नहीं होता, ठीक है, वो खत्म हो सकता है। सो वी कैन से द सोर्सेज विच कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड आर एग्जॉस्टेबल are known as non-renewable sources of energy। So basically they get ended, ठीक है, finish हो सकते हैं, it can be possible and आपको ये पता होना चाहिए जो वापस यूज नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉस्फेट, ठीक है, इससे जो हमें एनर्जी मिलती है, सो बेसिकली फॉस्फेट अगर फिनिश हो गया तो नो एनर्जी फ्रॉम फॉस्फेट। यू कैन से ऑयल, ऑयल अगर फिनिश हो गया सो नो एनर्जी फ्रॉम ऑयल। यू कैन से लाइमस्टोन, अगर इससे ये फिनिश हो गया सो वी कांट गेट द नेक्स्ट लाइमस्टोन, राइट। तो बेसिकली ये अगर फिनिश हो जाते हैं तो इनसे मिलने वाली एनर्जी का सोर्स जो है ये भी फिनिश हो जाता है। और कोल भी इसमें जो है हम लोग देखते हैं, कोल भी देखते हैं, देखेंगे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, ये जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ईजिली फिनिश हो सकती है। एक बार अगर ये फिनिश हो गई तो डेफिनेट सी बात है, अगर ये सोर्स फिनिश हो गए तो इनसे मिलने वाली एनर्जी भी फिनिश हो गई। तो दीज आर एग्जॉस्टेबल, दीज कैन बी फिनिश्ड एंड दैट्स व्हाई दे आर टेकन एज द नॉन रिन्यूएबल। ऑलराइट, दैट्स व्हाई दीज आर कंसीडर्ड एज द नॉन रिन्यूएबल एंड दैट्स व्हाई दीज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल। तो फटाफट से जो है इसकी डेफिनेशन नोट करो, बिकॉज दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
ऑलराइट, तो ये तो थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी। कितने तरीके की हमें एनर्जी मिलती है, कितने तरह की एनर्जी हमारे आसपास अवेलेबल रहती है, कितने तरह की एनर्जी हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड उन्हीं टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम टाइप्स ऑफ एनर्जी को फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ये रीजन मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज थर्मल, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द हीट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे कि रेडियो, ऑलराइट, जैसे कि मैग्नेट, ठीक है, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, राइट, और जो लाइटनिंग होती है, थंडर होते हैं, तो दे आर टेकन एज दी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं केमिकल, तो केमिकल के लिए हमारा फूड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं जो कि अच्छे वाले केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं होते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्राइकिंग मैच होता है उसमें भी ऊपर फॉस्फेट लगा होता है, और जिसकी वजह से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली इट कैन ऑल्सो टेकन एज द केमिकल, ठीक है, केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर होती है, ठीक है, न्यूक्लियर में सन के ऊपर जो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस होती हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी टेकन एज द न्यूक्लियर, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैकेनिकल जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो वो होता है लाइक तुम्हारा पोजीशन, तो तुम्हारा स्टेट देख के, लाइक यू आर एट रेस्ट, देन यू विल बी हैविंग अ मैकेनिकल एनर्जी नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। इफ यू आर मूविंग देन यू विल बी हैविंग अ मैकेनिकल एनर्जी नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली आपको क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको अवेलेबल रहता है, राइट। तो दीज कैन बी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। नंबर वन, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो आप देखो, आपका क्या है कि जैसे कोई भी बॉडी है, या तो वो रेस्ट पे रहेगी या तो वो मूव करेगी, बेसिकली यही दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, या तो कोई बॉडी रेस्ट पे रहेगी या तो वो मूव करेगी। तो जैसे मान लीजिए चेयर, ठीक है, चेयर रखी हुई है, सो इट इज एट रेस्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ मैकेनिकल एनर्जी रिलेटेड टू द रेस्ट, ठीक है। फिर अगर कोई चीज मूव करती है, लेट्स से हम मूव कर रहे हैं, सो वी, या फिर से बॉल मूव कर रही है, ठीक है, तो उस बॉल के अंदर जो एनर्जी रहेगी वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, बट इट इज रिलेटेड टू द मूविंग, राइट, मोशन से रिलेटेड है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन फर्स्ट आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है दैट द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रहती है, किसकी वजह से, उसके रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से, या फिर उसके स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर रहती है, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। ऑलराइट, कोई भी बॉक्स अगर रखा हुआ है, कोई बॉल अगर मूव कर रही है, ठीक है, आपने किसी बॉल को फेंका तो वो मूव कर रही है, उस वक्त उसके पास क्या एनर्जी होगी, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। ऑलराइट, ये मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स की होती है। काइनेटिक एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट, उसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मींस मूविंग, किसी भी मूविंग बॉडी में ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ऑलराइट, व्हिच कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इस मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, द स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, तो वो रखा हुआ है एंड उसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज बिकॉज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ऑलराइट, उसके पोजीशन की वजह से यू कैन से कि भाई वहाँ पर जो है यू कैन से कि उसकी जो एनर्जी है दैट इज दी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई बॉल अगर रोल कर रही है, ठीक है, रोल करते करते आगे जा रही है, सो वी कैन से इसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन से होगी, काइनेटिक एनर्जी। कोई अगर बॉक्स रखा हुआ है तो वी विल बी सेइंग इसके पास जो एनर्जी है दैट इज व्हाट, द पोटेंशियल एनर्जी। सो यू एवरीबॉडी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। अगर वो बैठी हुई है, अगर वो रेस्ट पर है, अगर वो मूव नहीं कर रही है, सो इट विल बी हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसी बॉडी जो कि मूव कर रही है और यू कैन से मूव कर रही है देन इट विल बी हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके की जो बॉडीज हैं जो कि रिलेटेड होती हैं स्टेट से, कि भाई स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ मोशन है, उस पे बेस्ड जो एनर्जी होती हैं, दीज आर नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हीट एनर्जी, ठीक है, जो कि हमको सन से मिलती है,
बेसिकली आप देख सकते हैं, जो कि हमको यू कैन से फायर से मिलती है, फायर से भी तो हीट मिलती है, राइट। तो वो भी हमको क्या मिल सकती है, बिल्कुल हीट एनर्जी मिल सकती है। सो व्हाट इज हीट एनर्जी? यू कैन से व्हेन वी बर्न कोल, वुड और गैस, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. Steam possesses heat energy. That is why in a steam engine the heat energy of steam is used to get the work done. Also the sun radiates the heat energy. So basically जो भी हीट एनर्जी होगी, ठीक है, सन से मिलेगा, डेफिनेट सी बात है, आपको सन से मिल सकता है हीट एनर्जी, एंड आपको अलग अलग चीज़ों से मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टीम, ठीक है, हम स्टीम लेते हैं, राइट। तो बेसिकली वो उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज ऑल्सो हीट एनर्जी, बिकॉज उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। स्टीम कब बनती है? जब लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट। सो वी कैन से हियर कि यहाँ पर जब कभी भी स्टीम मिल रही है हमको, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पर मिलती है। और वी कैन से हम कभी भी कोल को अगर बर्न करते हैं, ठीक है, कोल को बर्न करेंगे तो उससे भी हमें हीट एनर्जी मिलती है, बिकॉज थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, थर्मल का नाम, थर्मल का मतलब पता है तुमको, हीट होता है। देखो जो थर्मल होता है ना वर्ड, उसका मतलब ही होता है हीट, ठीक है, बेसिकली उसका यू कैन से हीट इज रिलेटेड टू हीट। तो आप बोल सकते हो कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी क्या किया जाता है, कोल को जलाकर हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाती है, फिर उससे पानी को बॉईल किया जाता है, उसकी जो स्टीम होती है उससे टर्बाइन को मूव किया जाता है, एंड देन वो एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है थर्मल पावर प्लांट्स में। तो बेसिकली काम क्या हुआ, हीटिंग एनर्जी को कन्वर्ट किया गया वहाँ पे। तो हीट एनर्जी जो होती है, किसी भी बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर हो या फिर वो अगर वो हीट देता हो, तो दैट कैन बी टेकन एज द हीट एनर्जी। जैसे कि सन हमको हीट एनर्जी देता है, राइट, दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हीट एनर्जी हमको मिल रही है, राइट। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी, ऑल्सो दे गिविंग अस द हीट एनर्जी, राइट। तो बेसिकली फायर, सन, ठीक है, कोल को जब हम बर्न करते हैं, वुड को जब हम बर्न करते हैं, कैंडल हम बर्न कर रहे हैं, राइट, तो कैंडल भी हमको हीट एनर्जी देता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज द लाइट एनर्जी, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज द सन। देखो ऐसी एनर्जी जो कि हमको देखने में हेल्प करती है, दैट इज नोन एज द लाइट एनर्जी। लाइट खुद नहीं विजिबल होती है, ठीक है, तुम्हें कभी लाइट दिखाई देती है? नहीं, लाइट खुद विजिबल नहीं होती, बट वो बाकी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, देखने में हेल्प करती है वो लाइट। मैं आपको लाइट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में ये बात बताऊंगी, राइट। लेकिन अभी आप ये बात समझो कि जो लाइट एनर्जी हमें मिल रही है, बेसिकली लाइट एनर्जी हमें बाकी चीज़ें देखने में हेल्प करती है, एंड ये लाइट एनर्जी का जो नेचुरल सोर्स है वो सन है, बिकॉज सन से हमें लाइट मिल रही है, राइट। और बाकी जो हमने आर्टिफिशियल सोर्स बनाए हैं, जैसे कि बल्ब हुआ, जैसे कि एलईडीज हुए, जैसे कि ट्यूब लाइट्स हुए, तो बेसिकली ये भी हमको क्या दे रहे हैं, लाइट एनर्जी दे रहे हैं। एंड आप लोग और भी बोल सकते हैं, लाइक कैंडल, कैंडल भी लाइट एनर्जी देती है, बिकॉज हीट के साथ साथ वो हमको रोशनी भी तो देती है, राइट। तो बेसिकली वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है, ठीक है, वो भी हमको लाइट एनर्जी अवेलेबल करवाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी जो होती है, बेसिकली ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द एनर्जी एमिटेड बाय वाइब्रेटिंग वायर, ठीक है, वाइब्रेटिंग वायर, बिकॉज वी डू नो कि भाई जब हम गिटार बजाते हैं तो वायर्स को हम लोग प्लग करते हैं, तो व्हेन वी प्लग दैट वायर वो वाइब्रेट करता है, एंड दैट हाउ साउंड कम्स आउट, अ ब्यूटीफुल और यू कैन से मेलोडियस साउंड कम्स फ्रॉम दी गिटार, ओके। ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन आपको कहाँ मिल सकता है, राइट, जैसे कि हम तबला बजाते हैं, सो वर्ड तबला बजाने पर क्या होता है, उसकी जो सरफेस होती है, वी पुश दैट सरफेस, राइट, वी पुश विद आवर हैंड्स, राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, वो जो मेम्ब्रेन होता है, जो ऊपर सरफेस होता है, वो वाइब्रेट करता है और उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ऑलराइट, विसल, फ्लूट, ये सबके सब ऐसे होते हैं जो कि जिनमें वाइब्रेट होता है। तो बेसिकली जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेटिंग चीज़ों से यू कैन से प्रोड्यूस होती है, और साउंड एनर्जी लाइक आवाज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं, दैट इज नोन एज द साउंड एनर्जी, राइट। तो आप देख सकते हैं रेडियो से में से जो है साउंड एनर्जी बाहर आती है, गिटार में से आती है, ठीक है, आप तबला ले सकते हो, ढोलक ले सकते हो, ड्रम ले सकते हो, राइट, क्योंकि उससे भी साउंड एनर्जी आती है, राइट। हम स्पीक करते हैं, तो जब हम स्पीक करते हैं तभी भी साउंड एनर्जी बाहर आती है, एंड बेसिकली हमारी जो यू कैन से लैरिंग्स वो वाइब्रेट करते हैं, तो उसी की वजह से जो है, उसके वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड है हमारे मुंह से बाहर आ पाती है, ऑलराइट। तो दैट इज नोन एज द साउंड एनर्जी।
ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? जो मैग्नेट पॉसेस करती है उनसे हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज मैग्नेट क्या करती है? आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, और बेसिकली जब वो अट्रैक्ट कर रही होती है तो उसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, एंड दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा जो मैग्नेटिक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है वो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ कैसा होता है? आयरन का नेल होता है। ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया? वायर को वाउंड कर दिया है। और तो जैसे ही हम अभी जैसे कनेक्टेड है ना, अभी जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा? ये एक जो नेल है ये क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा और आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगेगा, तो इसके पास भी मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऑलराइट, सो वी कैन से अ मैग्नेट आल्सो पॉसेस एनर्जी नोन एज द मैग्नेटिक एनर्जी। ऑलराइट, और जब कभी भी किसी भी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि वो किसी भी आयरन नेल को क्या बना सकता है? मैग्नेट बना सकता है। राइट, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैसे तो हमारे घर में आती है, बिल्कुल डेफिनेटली आती है, बिकॉज उसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक पावर है हमारे घर में आती है, एंड दैट्स वाई हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि टीवी अगर आप देखते हो, बिकॉज इट नीड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दैट्स वाई इट विल वर्क। ऑलराइट, जो भी आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सभी के सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपना काम, अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। ऑलराइट, यू कैन डेफिनेटली से दैट। अब देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक सेल स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, तो इसके पास केमिकल्स एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। राइट, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इट पॉजेज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Two charges placed at some distance experience a force. We did learn about the electrostatic, right? तो जब कभी भी दो चार्जेस किसी डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। राइट, दे ऑल्सो पॉजेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि ये चार्ज बॉडीज जो हैं, चार्ज बॉडीज, ऐसा नहीं होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर प्लस प्लस दिखने लग जाएंगे तो वो चार्ज बॉडी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चार्ज बॉडी होता है जैसे कि आप क्या करो, आप स्केल लो अपना। ठीक है, स्केल को क्या करो, अपने ड्राई हेयर्स पे उसको रब करो। ठीक है, जब आप उसको रब करोगे ना, और उसके बाद आप क्या करो, हल्का पेपर के पीसेस को जो है डाल दो, टेबल पे रख दो। ठीक है, फिर उसको रब करो और उसके जो पेपर्स हैं उनके ऊपर तुम घुमाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो वो जो पेपर है ना वो स्केल से जाके स्टिक हो जाएंगे। द रीजन बिहाइंड इज दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्केल के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाता है, वहाँ पे जो चार्जेस हैं वो जो है यू कैन से एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं उस जगह पर, एंड दैट्स हाउ दे अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर्स। राइट, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल एनर्जी। जैसे केमिकल एनर्जी केमिकल्स में होती है, पेट्रोल, डीजल, है ना, उनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। जो खाना हम खाते हैं उनके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है। तो बेसिकली केमिकल्स की वजह से केमिकल एनर्जी होती है। ऑलराइट, इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस एक्सेट्रा। द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल, डीजल इज यूटिलाइज्ड टू मूव व्हीकल्स। ऑलराइट, तो जो भी खाना हम खाते हैं उसमें भी केमिकल एनर्जी जो है होती है। तो बेसिकली ऐसी ऑब्जेक्ट जो केमिकल्स की बनी होती है तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। राइट, तो यू कैन से दैट बॉडी पॉसेस द केमिकल एनर्जी which is made by chemicals. Alright, next talk about the solar energy. अब आप देख सकते हैं कि भाई जो सोलर एनर्जी होती है वो सन से मिलेगी, डेफिनेटली बात है, सोलर इज फॉर सन। राइट, तो बेसिकली सन से जो एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सोलर पैनल्स का यूज करते हैं। इस तरीके की दिखती हैं सोलर पैनल्स, हो सकता है तुम लोग के घर में हो भी। ऑलराइट, तो देखेंगे द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज सोलर एनर्जी। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो, सन से सोलर एनर्जी मिल रही है, सन से हीट एनर्जी मिल रही है, सन से लाइट एनर्जी मिल रही है, कितनी सारी एनर्जी सन से मिल रही है। राइट, तो सन तो बेसिकली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, जब कभी भी छोटे छोटे एटम्स होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, जब एक जो है यू कैन से एक न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, तो जब एक न्यूक्लियस यू कैन से वो डिवाइड होता है, या फिर दो न्यूक्लियस जब मिलकर एक बनते हैं, तब जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है जनरेट होती है। तो बेसिकली हर न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, समटाइम्स अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ सम एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज आपने सुनी होगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो है इस एनर्जी को रिलीज किया जाता है,
और फिर इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को या फिर इलेक्ट्रिक पावर हमारे घर में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि देखो आसपास या फिर यू कैन से आपको वेराइटी ऑफ एनर्जीज मिल जाएगा। आपको लाइट एनर्जी मिलेगा, आपको हीट एनर्जी मिलेगा, आपको सोलर एनर्जी मिलेगा, आपको विंड एनर्जी मिलेगा। बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म्स आपके आसपास अवेलेबल होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब डिफरेंट एनर्जीज हैं। ये एक ही है, ये एक ही एनर्जी होते हैं, बट इनका फॉर्म डिफरेंट हो चुका है, उनका यू कैन से उनका स्ट्रक्चर बदल चुका है, बस इतना ही होता है। बाकी आप देखेंगे कि पूरे यूनिवर्स में द टोटल एनर्जी इज सेम, ठीक है। बस क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी कन्वर्ट होकर दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सेम। दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, एंड दैट इज नोन एज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। दैट मीन्स द टोटल यू कैन से कि भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, टोटल एनर्जी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेंज कर सकते हो एक फॉर्म में। हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ले आओ, इलेक्ट्रिकल से साउंड एनर्जी में ले आओ, लेकिन आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप टोटल अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखेंगे ये लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, बट आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ऑलराइट, एंड दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो, मैं आपको बताती हूँ। केमिकल एनर्जी, जैसे जो भी हम खाना खाते हैं केमिकल एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद जब हम उस एनर्जी को ले लेते हैं, जब हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने क्या किया है, केमिकल एनर्जी को मोशन में मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सन की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि वो क्या करता है, प्लांट्स को ग्रो करता है, प्लांट्स को ग्रो करवाता है। तो यू कैन डेफिनेटली से कि इस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन हो गया है, ठीक है। फिर देखेंगे जो फ्यूल से केमिकल एनर्जी मिल रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। मोशन करती है कार उसी की वजह से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल से मैकेनिकल में हो गई है, राइट। इलेक्ट्रिकल स्विच लगाते ही जो यू कैन से टोस्टर जो है वर्क करने लगता है, टीवी वर्क करने लगती है। तो आपने बेसिकली क्या किया है, जो भी उनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको यूज कर लिया है किसी न किसी फॉर्म में। जैसे आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं अपने कपड़ों पे, राइट। तो जब आप प्रेस करेंगे तो क्या हो रहा है, प्रेस में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी यूज हो रही है, और हमने क्या किया, प्लग इन किया हुआ है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है प्रेस को, वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में, और तब जाके आप उसको क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, राइट। तो बेसिकली हमारे आसपास कितने कन्वर्जन्स होते हैं। जैसे आप फैन का एग्जाम्पल लो, फैन के एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे आपने फैन ऑन किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन के अंदर गई, अब वो रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन के अंदर गई वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो बेसिकली बहुत सारे कन्वर्जन आपके आसपास होते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू अ होमवर्क, एंड दैट होमवर्क इज कि आपको क्या करना है, आपको ऐसे 5 कन्वर्जन्स लिखने हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज योर होमवर्क, राइट आउट द 5 कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी जो तुम्हें लगता है, ऑलराइट। उसके अंदर ये भी बताना है आपको कि कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दैट इज योर होमवर्क, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड स्प्रेड इट आउट अ लॉट, ताकि आपको जो दूसरे बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं दे कैन स्टडी फ्रॉम दैट, right? So basically what you need to do is to spread it out, and also do not forget to click on the bell icon, ताकि क्या हो, हर बार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Thank you so much.